So students, welcome to the third part of this lesson. In earlier two parts, you have seen that there is a chap called James Roderick Evans, and he is a kleptomaniac, and he normally runs away from the jail. That's why he is even called Evans the Brick, and presently he is in Oxford jail, and that is a high security jail, and plus in that also he is in a D wing. He is having his own cell, and he had just proposed to learn German O level, and permission was granted and by the authorities, and finally he have got his exam in June. Of the board also agreed, and they had planned that this exam would be conducted in his own cell, because he is the only one person who have to give this exam, and two prison officers were to look after this whole conduction. In fact, the governor, that is the jailer, he would be also looking into this matter directly, and he have even bugged a small microphone is been placed in his cell, so that each and everything that they talk is being heard by the governor in his office. Jackson and Stephen, two jail officers are there. They have been allotted this duty that this whole thing will be. McClary is an invigilator who comes from St. Mary's Mug, and this examination, as we see, is conducted smoothly, and Stephen is allotted the chance that he should take McClary from the cell and to see off at the main gate. He was very excited because Stephen was a new recruitee and Jackson was an senior officer, but governor had told Stephen to see off the McClary, and when McClary was sent off after the examination, Stephen had thought that he would have a coffee in a canteen, but he had a guts feeling that why I should see at least once Evans, what is Evans doing. When he peeped into through the peephole into the Evans cell, he saw that on the Evans chair there was a McClary was sitting, and he was bleeding. The blanket just dropped, and he was having his handkerchief, and he had placed his handkerchief like this, and so that the blood will not ooze out, and he shouted but McClary who was there, he told that don't worry about me, I know where Evans has left. He just put his hand here and there and took out that paper, German question paper, and told that I know, take me to the governor and I will tell where Evans have gone. And finally this was done, and McClary till here we had completed. Governor, I know where Evans is. ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स, और जैसे ही ये हुआ एकदम से सायरन बजने लगे, क्योंकि जेल से कोई भागा है तो सायरन, एंड दे इन्फॉर्म द पुलिस आल्सो. प्रिजन ऑफिसर bragged orders. Puzzled prisoners pushed their way into along the corridor. Doors were banged and bolted. सब तरफ हर जगह दरवाजे बंद हो रहे थे. जो प्रिजनर्स थे उनको पुश करके वापस अंदर भेजा जा रहा था. द फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, एंड विद इन ए मिनट मैक्लैरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम, क्योंकि मैक्लैरी इंजर्ड था तो उसको ऐसे करके वो लेके गए गवर्नर के सामने. सपोर्टिंग हिम ऑन द अदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ट एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड. विद ग्रीटिंग इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर perplexed and grim. अब गवर्नर एकदम से गुस्से में था. We must get to the hospital immediately. I just don't.
यू हैव कॉल्ड द पुलिस, और वो कहता है कि मैकलेरी क्योंकि इंजर्ड है तो इसको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाओ, और क्या तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया है? एंड यस दे आर ऑन देयर वे, और तब वो कहता है कि हाँ आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। मगर वो जो मैकलेरी जो इंजर्ड था वो कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऑकवर्डली ये ओपन द, और वो जर्मन क्वेश्चन पेपर खोल के गवर्नर के चेहरे के सामने, इट इज़ देयर, ये देखो यहाँ पे, सी व्हाट आई मीन। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल। A photocopied sheet had been cleverly superimposed over the last original blank page of the question paper. एक photocopy sheet वहाँ पे रखी गई थी जिस पे कुछ लिखा हुआ था। And you see they have done. Governor, you see, his voice trailed off again. और जो वो इंजर्ड मैकलेरी था उसकी आवाज़ एकदम, क्योंकि इंजर्ड था, सर पे लगी थी, खून आ रहा था, तो इसलिए वो वापस ऐसे हो गया। ड्रैग द लॉयर एंड लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग willed himself to translate the German text before him. और गवर्नर ने वो सी वी नो दैट गवर्नर आल्सो न्यू सम जर्मन, बहुत पहले उसने पढ़ी थी 5th ग्रेड में, तो उसने उसको ट्रांसलेट किया। सी सोलेन डैम स्को वेरा बेट्रेटेन प्लान गेनो फॉलेन, ये जो जर्मन में लिखा है जेटे पर इसका ट्रांसलेशन होता है यू मस्ट फॉलो द प्लान्स ऑलरेडी समथिंग द वाइटल पॉइंट इज द टाइम इज द 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज 11:22 to 11:25 एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग 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 डोंट हिट हिम टू हार्ड। यहाँ पे ये भी लिखा था कि उसको जोर से मत मारना क्योंकि वो जो सामने है वो ही इज़ ए पार्सन मिनिस्टर। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट असेंट वैन, और स्कॉट असेंट भी मत करना, जब बाहर निकलो तो ज़्यादा जो इमिटेट कर रहे हो स्कॉटिश असेंट को उसको भी ज़्यादा मत करना। ए फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल एंड इट्स क्रेसेडो, और फिर एक गाड़ी आई सायरन बजाती हुई। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश बैक एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वेल्ड टू ए जर्की हॉल्ट बिसाइड दैम। अब यहाँ पे आए थे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. What the hell is happening, sir? और आती पूछता है कि क्या हो रहा है। and turning, गवर्नर को भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो कहता है कि क्राइस्ट हु हिट हिम, और वो सुपरिटेंडेंट उसको जब मैकलेरी को देखते कि इसको किसने मारा, बट मैकलेरी कट अक्रॉस वॉट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन। एसलफील्ड वे ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, और मैकलेरी कहता है कि वहाँ चलो, एसलफील्ड वे चलो, वहाँ पे है इवांस। आई नो वेयर इवांस, he was breathing heavily and leaned for support against the side of the car, where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. In bewilderment, Carter looked at the governor, और वो ऐसे बोला कि एसलफील्ड चलो, और कार पे ऐसे टीका लगा लिया क्योंकि इंजर्ड था। तो अब कार्टर कहता कि क्या है ये, गवर्नर कहता कि मेरे को कहो, टेक हिम विथ यू, इफ़ यू डू यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट हैपनिंग। तब गवर्नर कहता कि किसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ इसको, ये जो मैकलेरी है इसी को पता है कि क्या हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लिव्ड अवे इन अ स्प्रट ऑफ ग्रेवल। एसलफील्ड वे, मैकलेरी को वो कह रहा है एसलफील्ड, और फिर उसको बिठा के फटाफट वहाँ से निकल गए। एसलफील्ड वे, मैकलेरी हैड सेड, एंड देयर इट वाज स्टेरिंग अप एट गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ जर्मन टेक्स्ट। फ्रॉम एसलफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट, वेयर यस ऑफ कोर्स। अब गवर्नर की नज़र गई उस जो फोटोकॉपी शीट थी उस पर नीचे लिखा था, जब ट्रांसलेट किया तो उसको पता चला फ्रॉम एसलफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट, वेयर यस ऑफ कोर्स। और द एग्जामिनेशन बोर्ड
वाज, अब उसको ये भी आइडिया क्या कि एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वो भी एसएल फील्ड वे पे ही है, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बी इन्वॉल्व इन एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप। अब गवर्नर को पता चल गया कि हाँ एसएल फील्ड वे पे बोर्ड का एग्जामिनेशन सेंटर है, इसलिए ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसा कोई पर्सन जो स्टार्टिंग से है, यानी क्वेश्चन पेपर, करेक्शन स्लिप, हर एक चीज़ में वो इन्वॉल्व है। एंड बिगिनिंग द क्वेश्चन पेपर, द करेक्शन स्लिप। अब गवर्नर ने स्टीफन और जैक्सन को तरफ देखा। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपेंड, डू आई? हिज वॉइस, अब थोड़ा आवाज़ में उसका गुस्सा था, एंड ही साउंडेड almost calm in its catching contempt. And which of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gate and waved him bye-bye? अब वो पूछ रहा है कि तुम दोनों जो पागल हो, इनमें से तुम दोनों में से किस बेवकूफ़ इवांस को लेके वहाँ मेन गेट तक गया और उसको बाय बाय भी किया? तब स्टीफन एकदम खुश होकर कहता है, इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव सोन। व्हाट? तब स्टीफन कहता है, जैसा आपने कहा था कि उसको छोड़ के आना, वैसे ही मैं उसको छोड़ के आया। बोला मैंने कहा? व्हाट? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू व्हेन यू रैंग सर एंड टोल्ड मी, व्हेन वाज दैट? द गवर्नर ने जस्ट पूछा कि कब की बात है वो। यू नो सर, अबाउट 11:20, जस्ट बिफोर। और वो कहता है जस्ट 11:20 के आसपास आपने मेरे को फ़ोन किया था तब। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वाजंट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज व्हाट यू वाज द यूज? ही had used the telephone at that time but only to try unsuccessful ones. मगर अब वो उसको डांटने का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसने हाँ फ़ोन यूज़ किया था मगर एग्जामिनेशन बोर्ड में ट्राई करने के लिए, मगर हमेशा वो फ़ोन एंगेज ही आ रहा था। एंड he shook his hand in growing despair and turned on the senior prison officer. As for you, अब जैक्सन की तरफ, जैक्सन, how long have you pretending you have got a brain? Yeah? Well, I will tell you something, Jackson, your skull's empty. वो जैक्सन को डांट रहा है और कहता है कि तुम्हारा जो ये सर है इसके अंदर दिमाग नहीं है, absolutely empty. It was Jackson who had spent 2 hours in Evan's cell the previous, because जैक्सन ने एक शाम पहले उसकी पूरा जो सेल था उसको अच्छे से चेक किया था कि कुछ मारने के लिए उसको नहीं मिले, मगर फिर भी ही मैनेज समथिंग, जिससे कि उसने मैकलेरी के सर पे मार दिया। Jackson, who had confidently reported that there was nothing hidden away there, nothing at all, and yet Evans has somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given such a terrible blow across head. और वो कहता कि फिर भी तुम कहते कि कुछ नहीं था सेल में, फिर भी उसके पास बियर्ड मिल गई, डॉग कलर मिल गया, बाकी सब कपड़े मिल गए, कैसे मिले ये सब? एंड इसके अलावा उसको कोई हथियार भी मिल गया जिससे उसने मैकलेरी के यहाँ पे इतना मारा कि खून निकल रहा है। अब ये जो प्रिजन वैन थी, गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव। प्रिजन वैन तभी आई, बैक्ड अलॉन्ग साइड, बट गवर्नर, he looked down again at the last line of the German. To the Haddington roundabout, where go straight over and make your way to New Graben. Where? अब गवर्नर सोचे ये न्यू ग्रेबन कहाँ जाना है? न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट। देयर वाज वार ग्रेव, मगर वहाँ पे वार ग्रेव करके जगह है, बट न्यू ग्रेव तो सुना ही नहीं है। समवेयर नियर रीडिंग, but no, it was probably a code word, or then it hit him, Newbury. God, yes, तभी उसके दिमाग में आया न्यूबेरी,
यानी ग्रेव में हम लोग बरी करते हैं यानी गाड़ते हैं, तो ये एक्चुअली कोड था न्यूबेरी जाने का। तो उसके दिमाग में ये आ गया कि न्यूबेरी जाएंगे ये लोग। न्यूबेरी वाज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, और न्यूबेरी जो है वो बहुत ही बड़ी प्लेस है वहाँ पे। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, और उसने ड्राइवर को, प्रिजन वैन को, जो ड्राइवर था उसको कहा कि मेरे को सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन लेके चलो, और वहाँ चढ़ गया। टेक जैक्सन एंड स्टीफन हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और वहाँ पे जाना और मिस्टर इंस्पेक्टर बेल के लिए पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल। गॉट दैट? ही लिफ्ट द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 at a time, और फिर यहाँ पे जैक्सन और स्टीफन को वहाँ पे भेज दिया और वो वापस ऑफिस में चला गया गवर्नर। ही लिफ्ट द स्टेयर्स, गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली एंड पुट द फैक्ट, और इन चीफ इंस्पेक्टर बेल को सब कुछ बता दिया कि हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ, एंड जो इवांस है वो न्यूबेरी आने वाला है, क्योंकि एज पर द कोड ही इज टू गिव। द गवर्नर सैट बैक एंड लेट अ सिगरेट, और फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो आराम से बैठ गया। ही लीट अ सिगरेट एंड फिर सोच रहा है, या गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वाज, केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलॉन्ग द लाइन। फिर सोचा कितना बुद्धिमान है ये इवांस, मगर फिर भी एक गलती कर गया, वो क्वेश्चन पेपर के पीछे वो छोड़ गया फोटोकॉपी। हाँ, होता है एक्चुअली, हर एक जो भी क्रिमिनल होता है एक ना एक क्लू छोड़ता है, हमेशा उससे छूट ही जाता है। वेल, ऑलमोस्ट ऑफ देम एंड व्हाट, दैट्स व्हाई very shortly Mr. clever Evans would be back inside doing his once more, और फिर इवांस वापस अभी पकड़ में आ जाएगा फ्रॉम न्यूबेरी, और he will be inside once again. The phone in his desk erupted, और फोन, तभी फोन बजा एंड कार्टर वहाँ पे आया, informed him that McClary had spotted Evans driving off along Esselfield Way. They have got the number of the car and all right, and had given chase immediately, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. तभी फ़ोन बचा और कार्टर इन्फॉर्म कर रहा है कि मैक्लेरी ने इवांस को देखा और उसका पीछा कर रहे थे हम लोग, मगर हेडिंगटन राउंड अबाउट में जो सर्कल होता है वहाँ से हम लोग पकड़ नहीं पाए उसको, कहाँ निकल गया वो, मगर हमें कार का नंबर मिल गया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबेरी। तब गवर्नर कहता है नहीं, वो न्यूबेरी जा रहा है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो एंड लेफ्ट इट एट इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ, नॉट हिज। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल गुलिबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। और फिर गवर्नर कहता है नहीं, वो न्यूबेरी जा रहा है और हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज़ चीफ इंस्पेक्टर बेल को इन्फॉर्म कर दिया, एंड ये अब पुलिस का काम है, क्योंकि जेलर का जो काम होता है दैट इज़ इनसाइड द जेल नॉट आउटसाइड, और बाहर का जो काम होता है वो पुलिस का होता है, और नेचुरली पुलिस उसको पकड़ लेगी। एंड ही थॉट फॉर हिमसेल्फ कि वो भी एक मजाक के लायक एक गवर्नर है, क्योंकि इवांस फिर उसकी जेल से भाग चुका है। एंड बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लेरी टू द हॉस्पिटल। तब वो पूछता है मैक्लेरी का क्या हुआ, हॉस्पिटल भिजवा दिया उसको? यस, ही इज इन रैडक्लिफ नाउ, रैडक्लिफ नाउ। रियली ग्रोगी ही वॉज when he got to the examination office and they rang for ambulance from there. और वो कहता कि वो बहुत प्रॉब्लम है, और वो जब एग्जामिनेशन सेंटर के वहाँ पहुँचे तब उसने वहाँ से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। गवर्नर रैंग द रैडक्लिफ a few minutes later and asked for the accident department. तब उसने रैडक्लिफ को फ़ोन किया कि कहाँ है मैक्लेरी के बारे में। मैक्लेरी यू से
यस ही इज़ अ पर्सन। कहता है कि हाँ मैकलरी आया को एडमिट किया होगा आपने। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन। यस देयर इज, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम अप फ्रॉम एसल फील्ड वे। तब वो गवर्नर कहता नहीं, उसने जब इंक्वायरी की तो कोई मैकलरी नहीं मिला। तब वो कहता कि नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारी एम्बुलेंस वहाँ गई थी, उसको पिक करके लाई है एसल फील्ड वे से। तब वो कहते हैं अच्छा अच्छा उसके बारे में, ओ यस दैट वी सेंड द एम्बुलेंस ऑल राइट, बट व्हेन वी गॉट देयर द फेलो हैड गॉन। बोला जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वो जो आदमी था इंजर्ड वो पता नहीं कहाँ चला गया। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज, जस्ट वैनिश नॉट ए साइन। बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग। मगर गवर्नर का दिमाग एकदम अलग से ही चल रहा था। एंड द ट्रूथ सेम टू हिट हिम विथ ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। A quarter an hour later they found the Ravender McClary। अब उसको लगा कि ये भी यहाँ पे भी कोई गड़बड़ है, और लगभग 15 मिनट बाद दे फाउंड मैकलरी। मैकलरी जो था उसको बांध के रखा था, उसके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था, इन हिज स्टडी इन द ब्रॉड स्ट्रीट। और उसका जो घर सेंट मैरी मग में जो उसका रूम था वहीं पे उसको बांध के रखा था। ही इज़ बैन देयर। और उसने बताया कि सुबह 8:15 से वो यहीं है, और तब 2 आदमी आए थे और उसने ये बताया कि उसको बांध के चले गए और उसके कपड़े वपड़े सब ले गए। इंक्वायरीज इन न्यूबेरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग। और दिन भर उन्होंने इंक्वायरी की न्यूबेरी में, मगर कुछ नहीं मिला। एंड नथिंग एट ऑल। एंड बाय द टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड। और शाम के लगभग 4 बजे तक तो सबको प्रिजन में पता चल गया था कि इवांस भाग गया है। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्प्रेजेंटिंग मैकलरी। और सबको पता चल गया कि एक्चुअली में वो इवांस मैकलरी बन के बाहर नहीं गया, बट who had walked out, it had been Evans impersonating McClary who had stayed in। वो इवांस ही था जो मैकलरी बन के जेल में ही था। वो सबके सामने बता रहा था मेरा क्वेश्चन पेपर देखो, ये देखो, वो एक्चुअली में इवांस था। द फिश एंड द चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर अ जेंटल स्ट्रोल अराउंड द सेंटर ऑफ द चिपिंग नॉर्टन, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव ए अर्ली नाइट। इवांस घूमता रहा, कहीं पे फिश खाई, चिप्स खाए, एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि वो होटल जाएगा और जल्दी सो जाएगा। ए स्मार्ट न्यू हैट कॉन्सिल्ड द व्रेकेज। और एक नई टोपी उसने पहन ली थी क्योंकि उसके बाल जो थे वो छोटे छोटे थे तो उनको अच्छे से काटे भी नहीं थे। एंड ही कैप्ड इट एज ही वॉक्ड द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लॉयन। It would take a good while for his hair to regain its former। पहले तो उसके लंबे लंबे बाल थे, मगर अब क्योंकि भागने के लिए उसने छोटे करवा लिए थे। But what the hell did that matter? He was out again। मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाल लंबे हो छोटे हो, वो तो आज़ाद है, प्रिजन से बाहर आ गया। And a bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissor। थोड़ा सा था कि जैक्सन ने जब वो सीजर निकाल ली थी तो इसके वजह से उसको वो सब बाल रेजर से करने पड़े छोटे छोटे। एंड द प्रीवियस नाइट बट हैड हिज गुड लक टू। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ। मगर एक अच्छा भी रहा जैक्सन को, जब उसने कहा था कि ये मेरे लकी चार्म है, इसको रहने दो, तो अगर जैक्सन कह देता कि नहीं टोपी हटाओ तो शायद वो पकड़ा जाता। मगर यहाँ पे दैट रियली हैड बीन क्लोज कॉल। स्टिल जैक्सन वाजंट सच अ बैड फेलो। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली हैड बीन द बियर्ड। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक। एक चीज का उसको अच्छा नहीं लग रहा था, दैट वाज अ बियर्ड। ये जो चिपकाने का होता है उसको एलर्जी थी चिपकाने से। एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंग। अभी भी उसको इरिटेशन हो रहा था बिकॉज वो ग्लू की वजह से।
And now the receptionist wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely a better. और अब रिसेप्शन पे जब वो पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे जो लड़की थी वो अलग थी, वो सेम नहीं थी जो जिसने सुबह उसको बुक किया था. And as he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. और फिर वो कहता है कि मेरे को ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं, बस ये जो पेपर है डेली एक्सप्रेस वो मंगा देना, 6:45 पे मेरे को उठा देना, क्योंकि कल वापस एक बिजी डे है. ही विसिल्ड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और फिर धीरे धीरे सीटी बजाते हुए ऊपर की तरफ गया. एज ही वॉक्ड अप द ब्रॉड स्टेयर, he had sought to like the idea of being dressed up as an minister, dog collar and everything. और जब वो ऊपर जा रहा था तो सोच रहा था वो एप्रन पहनना, वो डॉग कॉलर लगाना, वो सब उसको अच्छा लगा. एंड yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar Pew had just on slipping off the pack stud, and there would been the one panicky moment when McClary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing before Stephen. और मैकलरी जो बन के आया था उसने एक्चुअली में 2 एप्रन 2 कॉलर पहन रखे थे, और वो जो ऊपर की डॉग कलर है वो 1-2 बार तो एकदम निकलने वाली थी जब स्टीफन उसको चेक कर रहा था, और उसने हाथ ऐसे रख लिया. They had got that little problem worked out all right, though the pen struck in the mouth whenever the evil eye had appeared on the peephole. Easy, but all that fiddling about under the blanket with the blank, और जो उसने कंबल मांगा था वो इसलिए मांगा था ताकि वो अंदर ये सब कुछ पहन सके, और जब भी वो देखता था पेन ऐसा लगा हुआ होता था. But all that fiddling about under the blanket with the black front and stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly though. In the car he had found everything they had promised him: soap and water, clothes, map, yes the map of course, और उसने जो कुछ मांगा था कार में उसको मिल गया था. इनफैक्ट ही हैड गॉट द मैप आल्सो. ऑर्डिनेंस सर्वे का मैप था ऑक्सफर्ड शहर का. ही हैड गॉट गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, क्राइस्ट. और वो थैंक्स बोल रहा था अपने दोस्तों के लिए कि इतने क्लेवर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इतना बढ़िया प्लानिंग की थी. ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम and then stood frozen to stop, like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. और फिर वो अपने रूम में गया, उसका दरवाज़ा खोला और वापस स्लाइटली बंद किया, और जब उसने ये देखा तो एकदम से आश्चर्य में रह गया, क्योंकि वहाँ पे और भी कोई बैठा था. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had accepted or wanted to see. और फाइनली वहाँ पे जब वो पहुँचा तो उसने देखा एक बंदा वहाँ पहले से रूम में बैठा है, एंड दिस वाज द लास्ट पर्सन जिसको इवांस मिलना चाहता है. वो था गवर्नर, एंड वो गवर्नर वहाँ पे उसके रूम में बैठा हुआ था, और गवर्नर ने उसको ये भी कहा कि भागने की कोशिश मत करना.